آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے بپتسمہ۔ کلام مقدس سے ہم بپتسمہ کے بارے میں آج جانیں گے۔ جب کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں مرکز کی انجیل 16 باب، مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ یہ جو کلام مقدس کا حصہ پڑھا گیا، اس میں چاہ رہے ہیں کہ بپتسمے کے بارے میں ہم سیکھیں۔ 16ویں آیت میں لکھا گیا ہے جو بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ اس سے پہلے لکھا گیا جو ایمان لائے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے، بپتسمے کا ذکر نہیں آگے کہ بپتسمہ نہ لے، جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ بپتسمہ نہ لے یہ نہیں لکھا گیا یہاں پہ۔ پھر آگے بات جو وضاحت سے بیان کی گئی ہے، لکھا ہے کہ ایمان لانے والوں میں یہ معجزے ہوں گے۔ بپتسمہ لینے والوں میں نہیں لکھا، ایمان لانے والوں میں یہ معجزے ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ عزیزو، یہاں پہ غور طلب بات ہے۔ اگر ہم ایمان لے آئے ہیں تو پھر بپتسمہ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک ایمان نہیں لائے لیکن ایمان لانے والوں کے نشانات بتائے گئے ہیں یہاں پہ، ان کی زندگی میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ مرنے والی کو دوا پی لیں گے، ان کو کچھ نہیں ہوگا، سانپوں کو اٹھا لیں گے، وہ یہ کریں گے۔ یہ ساری باتیں یہاں پہ ایمان لانے والوں کے لیے لکھی گئی ہیں۔ اور پھر آگے ہم خداوند کے کلام میں سے جب دیکھتے ہیں بپتسمہ کے حوالے سے ہی، میں چاہوں گا کہ ہم اس کو ذرا تھوڑا غور کریں یا غور سے دیکھیں اس کو۔ بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ یہ باتیں جاننے کی ضرورت ہے۔ بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ کلام مقدس میں جو ہم پڑھتے ہیں، اگر کلید الکتاب کی بات کریں یا قاموس الکتاب کی بات کریں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ دفن ہونا، ڈوبنا، رنگنا۔ تو کلام مقدس میں جب دیکھتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہمیں ملتا ہے۔ اس کے ساتھ دفن ہونا، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی موت میں شامل ہونا، یہ دو باتیں ملتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اسی طرح سے کلام مقدس کو پڑھیں اس کا مطلب جاننے کے لیے، تو یہ غور طلب بات ہے۔ شاید آج تک ہم نے اس پہ غور نہیں کیا۔ عبرانیوں کا خط جو پالوس رسول نے لکھا ہے، عبرانیوں کے نام خط، اس کے 5ویں باب کی 7 سے 10 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، تو ذرا غور کیجئے گا کہ یہاں پہ پالوس رسول کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، عبرانیوں کا خط ہے 5واں باب اور اس کی 7، 8، 9، 10 4 آیات آپ کے سامنے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے خداوند کے کلام میں، اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کیں جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی، اور کامل بن کر اپنے سب فرمانبرداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا، اور اسے خدا کی طرف سے ملک صدق کے طور پر سردار کائن کا خطاب ملا۔ میرے عزیزو،
यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो हमें पढ़ने को मिलता है कि बशरियत के दिनों में उसने क्या किया, आंसू बहा बहा कर इल्तिजाएं की, और फिर आगे लिखा है कि उसकी सुनी गई। और ख़ास बात जो मैं आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि उसने फर्मबरदारी सीखी। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार रह तो ज़िंदगी का ताज तुझे अब्दी ताज मिलेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने ये फर्मबरदारी जान देने तक की। हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में कि जब यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं और कुछ लोग कह रहे हैं ये शैतान की चाल है, वो कहता है कि अगर तो खुदा का बेटा है तो नीचे आ जा सलीब से, लेकिन वो नहीं आया, आ सकता था नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको अपने बाप की वो बात पूरी करनी थी जो कलाम में कितने हज़ार साल पहले नबियों की मार्फत कही गई थी कि इस तरह से तुझे मार दिया जाएगा। तो वो जान देने तक वफादार रहा, सलीब पर उसने अपनी जान दे दी, उसने अपने बाप की फर्मबरदारी की। ये हमें कलाम मुक़द्दस बता रहा है कि उसने फर्मबरदारी सीखी, दुख उठा कर। ये थोड़ा दुख नहीं था उनके लिए, सलीब पे जान देना ये बड़ी तकलीफ़ दा। और लिखा है कि उसने फर्मबरदारी सीखी। मेरे जीजो, जब हम बपतिस्मे का मतलब फर्मबरदारी में देखते हैं, एक और हवाला मैं चाहूँगा कि आपके सामने मैं रखूँ। ये पौलुस रसूल का खत है कुरिन्थस की कलीसिया के नाम, उसका 10वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी मैं चाहूँगा कि ज़रा गौर कीजिए कि फर्मबरदारी किस तरह से हमारे सामने आती है। लिखा है खुदावंद के कलाम में, आए भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ़ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे, और सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी खुराक में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह था। मिस्रियों को जब मूसा निकाल के लेके गया उनको समंदर पार तक, पहले हम देखते हैं कि लिखा है कि जंगल में ले गया दुआ करने के लिए। वहाँ पे वो उसके ख़िलाफ़ काफ़ी बातें करते रहे कि हम तो वहाँ ये खाते थे, हम तो वहाँ वो खाते थे, हम तो वहाँ पे गोश्त खाते थे बड़ा, तो तू तो हमें भूखा मरने के लिए ले आया है। लेकिन फिर भी उसकी फर्मबरदारी वो करते रहे। फिर जब समुंदर पार तक जाना था उन्होंने, और मूसा की फर्मबरदारी करते रहे। बेशक बहुत कुछ बोलते थे, उसके लिए बढ़ाते थे, लेकिन फिर भी उसके पीछे पीछे वो चलते रहे। जब समुंदर में से निकलने का वक़्त आया तो उनका ईमान नहीं था कि हम आगे तो समुंदर आ गया, पीछे फ़िरौन है, तो हम तो मारे जाएंगे। और ये बातें उसको कह रहे हैं कि अब तो हमें मरने के लिए यहाँ पे ले आया, अब तो हम मर जाएंगे, पीछे देखो वो उसकी फ़ौजें आ रही हैं, हमें मार देंगे। वहाँ पे जब मूसा ने हाथ बढ़ाया अपने खुदा के सामने, उसने फरियाद की, क्या है खुदा मेरे लिए रास्ता निकाल। तो खुदा ने कहा, अपना जो तेरे हाथ में आसा है इसको उठा और समंदर पे मार दे। और मारा उसने, तो हम देखते हैं कि समंदर 2 टुकड़े हो जाता है। और फिर वो खुश्क ज़मीन, लिखा है खरोज की किताब में कि ज़मीन खुश्क हो गई, और उस खुश्क ज़मीन से वो सारे गुज़र कर पार चले गए। और जब पीछे आया फ़िरौन का लश्कर सारा, तो लिखा है कि समुंदर फिर मिल गया और सारे तबाह बर्बाद हो गए। तो ये बताने का मकसद ये है, खुदावंद के कलाम में ये बात लिखी हुई है कि उन्होंने मूसा की फर्मबरदारी की। कहाँ से? मिस्र से लेके कहाँ तक? समुंदर पार तक उन्होंने मूसा की फर्मबरदारी की। और यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया। यीशु ने फर्मबरदारी की अपने बाप की, और इस्राएलियों ने मूसा की फर्मबरदारी की, और लिखा है कि उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया। मेरे जीजो, अगर हम जानना चाहते हैं कि ये बपतिस्मा किस तरह से लिया, क्योंकि लिखा हुआ है कलाम मुक़द्दस में, इसको तो कोई झुटला नहीं सकता। बपतिस्मे का लफ्ज़ लिखा हुआ है, बपतिस्मा लिया। बपतिस्मे में हम देखें तो पानी तो उनको नहीं लगा,
कलाम में लिखा हुआ है कि खुश्की पर चलकर वो पार चलेगी। खुश्क ज़मीन हो गई। तो जब खुश्क ज़मीन हो गई, सर पे बादल है, दोनों तरफ समंदर खड़ा है, बीच में से गुजर गए तो उसको बपतिस्मा हो गया। कैसे हो गया? अगर हम आज इस पे गौर करें तो ये बपतिस्मा कैसे हो गया? पूछें अपने अपने जो आपके मुअल्लिम हैं या आपके उस्ताद हैं, उनसे पूछें, हमें समझाएं कि पानी तो उनको नहीं लगा लेकिन बपतिस्मा तो हो गया उनका। लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में कि उन्होंने बपतिस्मा लिया। कैसे बपतिस्मा लिया? आज इसलिए ये बात हम जानना चाह रहे हैं कि ये किस तरह से बपतिस्मा हो गया। पानी तो नहीं लगा उनको, लेकिन कलाम में लिखा हुआ है कि बपतिस्मा उन्होंने ले लिया उसका, मूसा का। तो मूसा को भी बपतिस्मा इसी तरह से हुआ कि उन्होंने मिस्र से लेके समंदर पार तक मूसा की फर्मबरदारी की। ये इसका हमें मीनिंग मिलता है। और यीशु मसीह के बारे में मैंने अभी पढ़ के बताया आपको, इसमें से इब्रानियों के ख़त में, कि यहाँ लिखा है कि उसने अपनी बशरियत के दिनों में ज़ोर ज़ोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे दुआएं और इल्तिजाएं की। आगे लिखा है कि उसकी सुनी गई और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फर्मबरदारी सीखी। अपने बाप की उसने फर्मबरदारी सीखी। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे जो बपतिस्मे का मतलब मेरी समझ में आता है वो ये है कि फर्मबरदारी और ईमान लाने के बारे में जो हमने पहले पढ़ा है, पीछे सीखा है कि ईमान अगर हम ले आते हैं तो फिर हम यीशु की भी फर्मबरदारी कर सकते हैं। अगर यीशु की फर्मबरदारी हम नहीं कर सकते, बपतिस्मे हम लेते जा रहे हैं, जितने मर्जी बपतिस्मे ले लें, इस बपतिस्मे का हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं। ये कलाम मुकद्दस हमें बता रहा है। अगर हमने बपतिस्मा ले लिया है तो उससे पहले फिर ईमान हमारा मजबूत हो गया है, और अगर ईमान मजबूत हो गया है तो फिर ये बातें हमारी ज़िंदगी में नज़र आनी चाहिए जो मरकज़ की इंजील में आपके सामने मैंने पढ़ी हैं। सॉरी, अगर ऐसी बातें हमारी ज़िंदगी में नज़र नहीं आती तो बपतिस्मे ले रहे हैं, उसका हमें क्या फ़ायदा। फिर आगे बहुत सारी बातें कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है। आगे हम देखते हैं कि बपतिस्मे, अभी मैंने मतलब बताया आपको बपतिस्मे का, और कितनी किस्म का बपतिस्मा खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। कितनी किस्म के बपतिस्मे हैं? 7 किस्म का बपतिस्मा कलाम मुकद्दस हमें बता रहा है। मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। अगर बार बार इसको देखना चाहें, इसके हवाला जात देखना चाहें, कलाम मुकद्दस से ज़रूर देखें। लिखा है, पहली बात, पहला जो है मरकज़ की इंजील में पहला बाप उसकी 9वीं 10वीं आयत में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देता है, तौबा का बपतिस्मा देता है, जो हम सब जानते हैं। और फिर दूसरा यूहन्ना तीसरा बाप उसकी 4 5वीं आयत में लिखा है, पानी और रूह से बपतिस्मे का जिक्र है। पहला तौबा का बपतिस्मा पानी से, फिर पानी और रूह। पानी क्या है और रूह क्या है, ये जानने की ज़रूरत है। पानी के बारे में हमने अभी मैंने आपके सामने रखा, मूसा का बपतिस्मा था। वो उस रूहानी चट्टान से पानी पीते थे, और वो चट्टान क्या थी जी? मसीह की फर्मबरदारी, मसीह में बपतिस्मा लेना है। वो किस तरह से लेना है आगे लिखा है। नंबर 3 पे है, अमाल की किताब में लिखा है 11वें बाप की 16वीं आयत, तीसरा बपतिस्मे का जिक्र जो है, अमाल की किताब 11वां बाप उसकी 16वीं आयत, रूह से बपतिस्मा जो यीशु मसीह देते थे, रूह का बपतिस्मा आज यहाँ पे दे रहे हैं लोग बहुत सारे। बेशक खुद उन्होंने लिया या नहीं लिया, लेकिन वो रूह का बपतिस्मा दे रहे हैं। और ये चीज़ों पे गौर करने की आज हमें ज़रूरत है, हम कहाँ पे हैं। और चौथा अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है लूका के इंजील में 3 बाब की 16वीं आयत, रूह और आग का बपतिस्मा। रूह और आग का बपतिस्मा, रूह क्या है और आग क्या है, हमें जानने की ज़रूरत है। अगर आज तक नहीं ये बातें बताई गई तो फिर अगले सेगमेंट में हम ये बातें बयान करेंगे, खोलेंगे इनको कलाम मुकद्दस से। और 5वां लिखा है लूका 12 बाब उसकी 50वीं आयत। यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, लेकिन मुझे एक और बपतिस्मा लेना है जब तक ना होले में बहुत ही तंग रहूँगा। ये कौन सा बपतिस्मा है? यीशु मसीह फरमा रहे हैं। और फिर छठा, मरकज़ की इंजील 10 बाब उसकी 38-39 आयत में लिखा है,
यीशु ने कहा कि जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम नहीं ले सकते। मेरे अजीजों, इन बातों को जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम नहीं ले सकते। वो कौन सा बपतिस्मा है? फिर हम कौन सा ले रहे हैं? और 7वां जो लिखा है कलाम मुकद्दस में, मत्ती की इंजील 28 बाब और उसकी 19वीं आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा देना उनको। बाप, बेटा और रूह कुद्दस के नाम से उनको बपतिस्मा देना। ये 7 बपतिस्मों का जिक्र कलाम मुकद्दस से मैंने आपके सामने पढ़ा है। बार बार इसको सुनिए, बार बार पढ़िए इसको, इस पे गौर कीजिए कि ये हमें कौन सा बपतिस्मा लेना है। यहाँ पे गौर करने की ज़रूरत है, हमें कौन सा बपतिस्मा लेना है। ये तो बहुत सारे बपतिस्मों का जिक्र है। तो इसको जानने के लिए मैं चाहूँगा कि आपके सामने एक हवाला मैं ज़रूर रखूँ। पतरस का पहला ख़त है, उसका 3रा बाब। पतरस का पहला ख़त, उसका 3रा बाब। जी हाँ, पहले बाब का पहला पतरस 3रा बाब और उसकी 21-22 आयत। जी, कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, बल्कि मैं 20 से अगर पढ़ दूँ तो लिखा है, जो उस अगले ज़माना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक़्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बचें, और उसी पानी का मुशाबा, गौर कीजिएगा इस बात पे, उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। इसको फिर पढ़े देता हूँ। उसी पानी का मुशाबत रखने वाला पानी, खुदावंद यीशु मसीह को पानी की चट्टान कहा गया। उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है, और उसे जिस्म के नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालब होना मुराद है। खाली डुबकी लेना मुराद नहीं। और अगर हमारी ज़िंदगी में सिर्फ खाली यहाँ तक ही है, बपतिस्मा ले लिया बस ख़त्म बात, उसके बाद कोई अमल नहीं, कोई ईमान नहीं, कोई सोच नहीं, तो मेरे अजीज़ों फिर ये आज हम गौर करें अपनी ज़िंदगियों पे, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों में कितना बदलाव है आज, खुदा के साथ कितना लगाव है हमारा आज। इसी तरह से मैं चाहूँगा कि आगे में हम बढ़ें। फिर आगे करंथियस की कलीसिया के नाम जो मैंने ख़त पढ़ा है अभी 10वें बाब की पहली 5 आयत, मूसा का बपतिस्मा जो है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आज हम गौर करें कि बपतिस्मे का मतलब क्या है, बपतिस्मा किस तरह से, हमें किस तरह से लेना है बपतिस्मा। और आगे हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से ही, गलीतियों का ख़त है पौलुस रसूल का, 3रा बाब है उसका। यहाँ पे लिखता है कि मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा। और मैं पढ़े देता हूँ आपको, गलीतियों का ख़त है 3रे बाब की 26 आयत। गलीतियों का ख़त 3रा बाब उसकी 26 आयत। इसमें यूँ लिखा है, गलीतियों का ख़त 3रा बाब, जी, कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है 26वीं आयत से, लेकिन क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। गौर कीजिएगा, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। मेरे जीजो, यहाँ पे मैं ज़रूर बात करूँगा, मसीह को पहन लिया, मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया और मसीह को पहन लिया। पहन लिया का क्या मतलब है? मैं एक छोटी सी मिसाल यहाँ पे बताना चाहूँगा। कोई भी भाई अगर पुलिस की वर्दी पहन ले, जो नहीं उसको जानता कि इसका काम क्या है, तो लोग क्या समझेंगे? वर्दी को देख के क्या कहेंगे लोग? जी, पुलिस मैन कहेंगे। अगर पुलिस की वर्दी पहनी हुई है तो वो यही कहेंगे ये पुलिस मैन है।
جو جانتے ہیں کہ یہ تو پولیس والا نہیں ہے وہ تو سمجھیں گے یار ایسی وردی پہن لی اس نے، لیکن جو نہیں جانتے وہ وردی دیکھ کے بول دیں گے کہ ہاں یہ پولیس والا ہے۔ تو میرے عزیزو یہاں پہ لکھا ہے کہ جو مسیح کے ہو گئے ہیں انہوں نے مسیح کو پہن لیا۔ تو مسیح کو پہن لیا کا کیا مطلب؟ ہم نظر آ رہے ہیں مسیح؟ یسوع مسیح نے کہا تمہارے کلام سے، تمہارے کام سے، تمہارے چال چلن سے پتہ چلے کہ تم میرے لوگ ہو۔ آج ان باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو ہم نے اس کو پہن لیا ہے تو پھر ہم سے مسیح نظر آنا چاہیے، اگر نہیں پہنا تو پھر آج ہم خود اس بات پہ غور کریں۔ آخری بات خداوند کے کلام میں سے ہی میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا، رومیوں کے خط میں 6 باب کی 3 آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا اور اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ میرے عزیزو اس بات پہ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر موقع ملا تو ہم ضرور اس کو اور آگے سیکھنے کے لیے ہم وقت نکالیں گے۔ ایک بات میں چاہ رہا تھا کہ میں شیئر کروں ایک اور، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ بس پھر نیکسٹ جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا اس میں ہم سیکھیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔